Respected ma'am, dear colleagues, and my dear students, Assalamualaikum. A very good morning, all of you. Today we are not just learning about AmChat. Actually, we are practicing how to understand score, interpretation, and it clearly. Okay, by the end of this session, you will be able to confidently assess the child on the AmChat. So, AmChat stand for Modified Checklist, revised version with follow-up. So let's dive into the background of the MChat. Initially, chat was developed by Simon Barron in 1992. It was administered on 18 months child, and for it has 14 items. And Robbins et al. Modified this MChat in 2001, 18 to 24 months, and it has 23 items. Now, Dinah Robbins in 2009, MChat revised with follow-up. Okay, so the age range is 16 to 30 months and item is for 20 item it has. Okay, so we are talking about MChat. MChat, what is MChat? Have you ever heard about MChat? It is a checklist that is used for toilets to check the autism. Okay, fine. Have you ever think that how early we can identify early signs of autism in the children? About 1 to 4 years. 1 to 4 years. Okay. Any guesses? Any other guesses? I think the people in developed countries, they are even diagnosing, they are diagnosing a child at 2 or 3 months according to development. Okay. Okay. So today we are assessing a child on a easiest chest screening checklist through which we can early identify autism symptoms. Early symptoms. Okay. So we are talking about MChat revised version with follow-up. Okay. So it is a screening tool. What does it mean by a screening tool? Like if we are suspecting that the patient has some symptoms of autism, but we are not sure about this, so we just go like after 16 months or at 16 months, we go through MChat and screen whether the child is having autism or not. If we are getting like, some points in that, then we will go for the final minutes. Any other? What do you understand by screening test in particular? The कुछ tests ऐसे होते हैं which are called as screening. There are some tests which are called as specific tests. You from medical background, do you have any know-how? What is screening? Does it confirm the disease or does it rule out the disease? Confirmation. This is a wide reflex करती है ना. You are going and testing the children for like this. And if you are finding white, then you are worried. Okay. So what you are doing? हम एक population control में जब हम कुछ check करते हैं, तुम्हारे expectation क्या है? You should be getting red reflex. The reflection from the retina should be red. If that is not red, then you are worried. Okay. So basically, whenever you are going for a very large population, you are not going for a very diagnostic. Okay. Let us say you are sitting in OPD and there are 100 children coming for follow-up, and you cannot just go on for diagnostic tests and all. So at least at some point of time, there should be a test. There should be at least excluding the disease. Okay? And maybe bringing some for कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े abnormal होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो normal. ये याद रखना है दिमाग में हमेशा कि जब भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, वो डिजीज को रूल आउट करता है. ठीक है? तो ये जब MChat किसी बच्चे भी एडमिनिस्टर करोगी और उसका स्कोर अगर कम आया, तो ये पता चल जाएगा कि उसको ऑटिज्म नहीं है. ये नहीं पता चलेगा कि उसको ऑटिज्म. ठीक है. अगर वो ग्रे एरिया में आएगा तो तुम्हें फर्दर टेस्ट करना है. लेकिन वो नॉर्मल है, ये तुम श्योर हो.
As ma'am said, it is a screening tool. It is not a diagnostic tool. We can't say the child has autistic child. Okay, so for the diagnosis, we have to administer a diagnostic test. Okay, so it has 20 questions, oh yes and no question, and it is filled by the parents, and it has two stages. Okay, first parents has to fill the questions. If parents found that the child comes under moderate risk, then we will say that you have to consult the professionals for the follow up session or diagnostic tool. Okay, so it's like two part. Are you getting, or is there any confusion? इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली, दो पार्ट, यानी कि पहले जो है क्वेश्चन एयर को जो मैंने आप लोग को दिया हुआ है, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें यस एंड नो है. पेरेंट्स, इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. यू कैन डाउनलोड फ्रीली एंड यू कैन यूज दिस टेस्ट ऑन योर ओन चाइल्ड. ओके, तो पेरेंट्स इसको फिल करेंगे. फिल करके अगर उनको ये लगता है मॉडरेट रिस्क में स्कोर होता है, तो वो जो है फॉलो अप के लिए प्रोफेशनल्स के पास जाएगा. प्रोफेशनल इसका फॉलो अप देखेगा. अगर हाई रिस्क में है तो फॉलो अप एस्केप करके उसका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगा. The most important thing in the developed countries, as Sanjita ma'am told, in the developed countries, it is mandatory for all the children who should be assessed in at the age of 16 and 30 months. But in the developing countries, we should apply this test on the high risk category. These categories you can see in the slide. If the elder sibling has ASD, if the parent's age is older, and if the parents has any psychiatric illness, or the mother has seizure disorder, or any syndromic features, or premature, if baby is premature. Okay, ma'am, you want to add something? Actually, these are the categories that we need to go for, but otherwise not by Government of India, but IAP, that is Indian Academy of Pediatrics, that has recommended every child coming for first booster vaccination, which happens at around 16 to 18 months, should be screened for autism if he is having any concern shown by the parents. IAP के according. IAP के according 18 month में पहली screening has to be done. Okay. I also wish कि ये जो है हम OPD में दे दें, maybe to our postgraduates. इसमें भी अगर कोई issues हैं raised by the mother, or if they are finding one, they can fill it up. Yeah. Okay, preparation. So before any test, we should prepare ourselves for the test. So first, we should provide proper environment, and then. Simple लगता है लेकिन ये बहुत important है. Time and again जब आप care provider हैं तो आपको रैपो बनानी है. The mother, father, whosoever is coming is already devastated. आप तो नहीं इतने devastated thankfully. So अगर वो यूज भी कर रहा है अपना पेशेंस या यूजिंग हिज टूल, you are the one who has to show it. Okay, so we have questionnaire, paper, pencil, proper environment, and rapport building is always very important in every healthcare setting, as ma'am said. Rapport building has all the skills. If you build rapport building properly, then you can assess a child very effectively, and the result you will get proper. Okay, so now come to the scoring part. Okay, so MCAT is very easiest tool, as we all know. It has 20 items. You all have this checklist or questionnaire on your table. Okay, so first we should say the range. If the child has 0 to 1, it means low risk. There is no follow-up. If the child got 3 to 7, moderate risk. If the child got 8 to 20, it means high risk. Okay, moderate में, as I told earlier, you should do follow-up session and then diagnostic test. Or if the child comes under high risk, escape follow-up and for direct diagnostic test. Okay, so the how to do scoring? First, you okay,
2, 5 and 12 item are reverse score only. Rest is same. Like most of the item, yes is the typical response, okay, and no is at risk, except 2, 5 and 12 item. So let's take a example. Okay, you all have this scoring sheet, this checklist. So take a hypothetical example. Name X and age is 24, and the problem or complaint has poor eye contact, prefer to play alone. Okay, now take मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं या फिर आप लोग अपना करेंगे? कट शॉर्ट करने के लिए okay, okay. So okay, so this is the hypothetical case. Like suppose 1 is yes, 2 is yes, 3 is not. Please mark it on your scale. 1 is yes, 2 is yes, 3 is no, 4 is no, 5 is no, and 6 is no, 7 is yes, 8 is no, 9 is no, 10 is 10 is yes, sorry, and 11 is no, and 12 is yes, 13 is yes, 14 is yes, 15 is yes, 16 is yes, 17 is no, 18 is no, 19 is yes, and 20 is no. Have you marked it? Okay, now calculate on your own, then I'll tell you. Okay. देखो सबसे पहले जो है नो रेस्पॉन्स 2, 5 और 12 को रिवर्स देंगे. ठीक है, रिवर्स मीन्स हाँ, यानी इसमें अगर तुम लोग चेकलिस्ट में देखोगे तो नो जो ग्रीन से लिखा है नो रिस्पॉन्स जहां आएगा वहां 1 देंगे, और जो रेड से लिखा है यस रिस्पॉन्स आएगा तो 1 देंगे. मैंने तुम लोगों के लिए ये चीज कर दी है. ठीक है, जो ग्रीन से लिखा हुआ अगर नो रिस्पॉन्स है तब 1 देंगे, यस रिस्पॉन्स है तब 1 देंगे. वैसे तो ये बहुत इजी है, मतलब 2, 5 एंड 12 पे रिवर्स करेंगे और सब में सेम आएगा. इसकी इंक्वायरी में भी कोई दिक्कत है? जैसे मैं आइटम फर्स्ट को लूंगी तो इफ यू पॉइंट एट समथिंग अक्रॉस द रूम डज योर चाइल्ड लुक एट इट. मीन्स हम इसे कैसे पूछेंगे बच्चे, मतलब कैसे समझेंगे कि इसको हमें यस देना है या नो देना है? हाँ, जैसे क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन को भी हम डिफाइन करें तो फर्स्ट इज इफ यू पॉइंट एट समथिंग अक्रॉस द रूम डज योर चाइल्ड लुक एट. इसमें एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है. इफ यू पॉइंट एट टॉय और एनिमल डज योर चाइल्ड लुक एट योर टॉय और एनिमल. अगर हम किसी टॉय की तरफ दिखाते हैं कि देखो पॉइंट करके फिंगर पॉइंटिंग से कि देखो ये टॉय, ये कप, ये पंखा, अगर बच्चा देख रहा है तब हम यस देंगे, अदरवाइज हम नो देंगे. ठीक है, इसी तरह दूसरा, हैव यू वंडर इफ योर चाइल्ड माइट बी डेफ, यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका चाइल्ड सुन नहीं रहा है या सुनता नहीं है? तो अगर इसमें यस आ रहा है तो आपको रिकमेंड करना है हियरिंग टेस्ट के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप स्क्रीन आउट कर रहे हैं उस टाइम पे, आपने पहले हियरिंग टेस्ट नहीं कराई है. तो जब अगर ये सेकंड में यस आ रहा है तो यू शुड रिकमेंड फॉर हियरिंग टेस्ट. एंड द थर्ड वन इज डज योर चाइल्ड प्ले प्रिटेंड और मेक बिलीव. प्रिटेंड प्ले आप सब लोग जानते हैं. प्रिटेंड प्ले क्या होता है? डू यू नो अबाउट प्रिटेंड प्ले? क्या होता है? स्टूडेंट की तरफ से कोई बताएगा? हम कोई भी सर्टेन रोल प्ले हम दे देते हैं कि डॉक्टर के इसमें एग्जांपल हो सकते हैं. अगर चाइल्ड एक रोल प्ले कर रहा है कैसे? फॉर एग्जांपल क्या, जैसे तुम बच्चे का क्या पूछोगे पेरेंट्स से या खुद कैसे करोगे? हम जैसे वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसे खेलता है, एक डॉक्टर बन गया, दूसरे बच्चे बन गया, एक टीचर बन गया, दूसरे स्टूडेंट बना के खेला. और अगर और पहले थोड़ा सा एज बच्चे की और छोटी हो तो वो कैसे खेलता है? और प्रिटेंड प्ले जैसे छोटा बच्चा है कि 1.5 साल का, हाँ एग्जैक्टली, मतलब प्रिटेंड करता है, मतलब होता नहीं. हाँ हाँ, That is very important. Very बचपन है. But symbolic और those role plays are totally absent in children. उनकी इतनी imagination ही नहीं है that they can think that this could be made as a
mobile. Okay, so absence of symbolic or role. हाँ एग्जैक्टली मैं Sorry, मैम ये तो बहुत अच्छा है ना, आप मेरे काम इजी कर दे रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो चीज नहीं एक्चुअल में नहीं है और आप उसको प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कि उस चीज को एज इट इज कि आप उससे बात कर रहे हैं या उससे खेल रहे हैं या उसको करा रहे हैं। ठीक है, तो आप एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन आ जाता है एक तरह से इसमें, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में या मैन लैंग्वेज में करेंगे। फोर्थ वन इज डज योर चाइल्ड लाइक क्लाइंबिंग और थिंग्स। तो ये बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा कि बच्चे से हमें ये पूछना है कि बच्चा आपका क्लाइंब करता है कि नहीं, चेयर सोफे से जैसे बच्चे कूदते हैं, ठीक है, या चेयर से, तो वो करता है कि नहीं। डज योर चाइल्ड मेक अनयूजुअल फिंगर मूवमेंट, कुछ अनयूजुअल फिंगर मतलब आंखों के पास लाके खेल तो नहीं रहा है, इस तरह से बच्चा। ठीक है, डज योर चाइल्ड पॉइंट विद वन फिंगर टू आस्क समथिंग टू गेट हेल्प, खुद फिंगर पॉइंट कर रहा है कि नहीं, जैसे मैम ने बताया। 5 कौन सा है? 5 में अनयूजुअल फिंगर मूवमेंट, हाँ दे। और 6 मंथ इज पॉइंटिंग, कि बच्चे में पॉइंटिंग करता है कि नहीं, कोई चीज मांग रहा है तो आपसे पॉइंट करके मांग रहा है या नहीं, या दिखा रहा है या नहीं है। ठीक है, 7th इज डज योर पॉइंट, नहीं 7th में तो ये आ गया। 8th इज योर चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रेन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे इसमें तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही है, बट इसमें क्या है, इसको कैसे आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ यू विल डिफाइन इज योर चाइल्ड इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रेन। सोशली वो मतलब स्माइल पास करता है, यानी दूसरे बच्चों को देखते हैं, उनके साथ इजीली मिक्स अप होता है। इन सम केसेस द चाइल्ड इज शाई, तो अगर मान लो कोई बच्चा शाई है, वो नहीं कर रहा है, तो तुम कैसे इसको स्कोर करोगे ना, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि इंटरेस्टेड है या शाई है। अगर शायद वो वहाँ पे बैठा रहेगा, लेकिन अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग रहना पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड यानी सोशली जो चाइल्ड इंटरेस्ट, जैसे हम सब सिबलिंग्स होते हैं या हम एज ग्रुप में, अपने एज ग्रुप में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज मार्क करने वाली होती है कि वो अगर सोशल स्माइल भी नहीं दे रहा है बच्चा और शाई भी है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा आई कांटेक्ट करेगा या थोड़ी देर के बाद मिंगल होने की कोशिश करेगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये जो माइनर पार्ट होते हैं ना, जो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है चाइल्ड को, जब चाइल्ड आता है तो हमें ये देखना होता है कि बच्चा शाई है, वाकई शाई है, या वो सोशली इंटरेक्टेड नहीं है ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है मैंने, अगर के तो वी विल टॉक अगेन ऑन द स्टेटमेंट, और बस स्कोरिंग पे ही छोड़ दे मैम। ये 30 वाला मुझे और बता दो। Does your child walk like? Does your child walk again? मतलब आपका बच्चा चलने लगा है, चलता है या नहीं चलता है। This is just to check a milestone. हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ये माइलस्टोन को भी चेक करता है ना, दिस चेकलिस्ट। ये ऐसे ही नहीं सिर्फ मतलब कि सिर्फ आपका वो चेक कर रहा है, एएसडी इवैल्यूएशन कर रहा है। हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों में सेंसरी इश्यूज शुरू होते हैं, तो डिलेड वॉकिंग भी दे कैन हैव। तो क्या है ना, does your child show you things by bringing them to you or holding them to for you to see, not to get help but just to share? For example, showing you a flower, a stuffed animals or a toy truck. ऐसा तुम लोग ने देखा है, ऐसा करते हैं बच्चे? नौशाद ये क्या बता रही है, क्या कौन सा क्वेश्चन? ninth one, ninth. ये क्या है? इसको कैसे हम पेरेंट्स से पूछेंगे, क्या है, क्या देखेंगे पेरेंट्स से। नहीं जाने मार्क्स से देखो। होता है बच्चे मैम, इट्स लाइक सोशलाइजेशन, इट्स लाइक सोशलाइजेशन स्किल, सोशलाइजेशन स्किल की भाई उसका इंटरेक्शन और वे क्या है, मतलब वो चीज में इंटरेस्ट है मीनिंगफुल वे, इट्स नॉट लाइक ए मीनिंगलेस कि मान लो उसमें खाली वो खुद ही कर रहा है, जा रहा है, कर रहा है, इट्स लाइक ए रेस्टलेस, इट मे बी शोइंग द थिंग टू अदर्स लाइक ए सोशलाइजेशन। मैंने तो सोशल एनिमल ना, वो अकेले नहीं खुश होता, वो सबके साथ मिलकर खुश होता है। सो चाइल्ड का मेन यूनिवर्स उसकी मदर है, उसको कोई भी अच्छी चीज दिखती है, he will go and show to the mother, और एक शेयर्ड होता है।
Yes, so whatever thing is fascinating the child, he will first appreciate and go certainly to the mother and other person. ऐसे अगर आप छोटा ग्रुप भी देंगे उसको तो सबसे पहले उसकी मदर की बात है। वो वाला जो शेयर्ड इमोशंस है वो है और शेयर्ड इंटरेस्ट है। शेयर्ड इंटरेस्ट है हाँ वही लैंग्वेज जो बच्चा शेयर करते हैं वो होगी। मदर के साथ शेयर इंटरेस्ट करता है। मैम इसमें तो बच्चे देखो- को कुछ अच्छा लगता है तो वो अपनी मदर को शो करेगा बैठ करके। जैसे मैम बच्चा अगर कार्टून भी देख रहा होता है और उसको कुछ अच्छा लगेगा तो वो क्लैप वगैरह करेगा तो वो अपनी मदर को बुलाता है। ये शेयर्ड इमोशन है। शेयर्ड इंटरेस्ट मुझे मदर दिखा रही है उसको चिड़िया तो वो भी देख रहा है और दोनों खुश हो रहे हैं। ठीक है मतलब एक ही सब ऑब्जेक्ट है और दोनों It is also called joint attention. It is also called joint attention. और जब ये होता है शुरू ही इसको ऐसे करते हो तो पहले आई कांटेक्ट है बोला 11 months is when you smile at your child. Does he or she smile back at you? Okay. 11th one is when you smile at your child, does he or she smile back at you? ठीक है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Does your child get upset by everyday noises? For example, does your child scream or cry to noise such as vacuum cleaner or loud music? तो जैसे डॉक्टर आशाद कह रहे थे ना दे कैन बी बोथ वेज तो बहुत हाइपर सेंसिटिव होंगे उनको कोई ये जो सेंसेस हैं वो फील ही नहीं हो रहा चाहे विजन है चाहे लाइट है चाहे टच है ठीक है और दूसरे होते हैं जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है ठीक है तो उनको नहीं पसंद आ रही कोई भी साउंड कुकर की विसल्स या लाउड हॉर्न्स ये होते हैं सबसे वो डर रहे होते हैं। Does your child look you in the eye when you are talking to him or her? 13 वाला हो चुका है. It's already done. हाँ. हाँ. अगर that depends ना कि बच्चा हम जिसको स्क्रीन कर रहे हैं वो कितने मंथ्स पे आया है Exactly. वही ना कि 16 months onward है 16 to 18 में अगर कर रहे हैं he doesn't walk, he's not walking But by definition 18 months 18 months Okay. Does your child look you in the eye when you are talking to him or her, playing with him or her, or dressing him or her? Yes, I want to. हाँ. 15 is does your child try to copy what you do? For example, wave, bye bye, clap, make a funny noise when you do. Maybe it's covered under the category of modeling. I'm sorry Modeling. modeling Imitation. 16. If you turn your head to look at something, does your child look around to see what you are looking at? ये क्या है आप बताओ इस पे तो डिस्कशन काफी हो गया 16 हम लोग क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट में से कोई बताएगा 16 क्या बात कर रहे हैं हम लोग क्या है ये हम जब बच्चा कुछ लेने की कोशिश हम्म करते हैं उसमें तो कुछ देखते हैं तो क्या बच्चा वो नोटिस करके देखना कि पेरेंट क्या फाइंड करने की कोशिश तो ये क्या है मतलब अभी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन कर लिया ना तो उसमें से ही कुछ है ये क्या है ये किसके अंडर में आ रहा है ये जॉइंट अटेंशन ठीक है 17 does your child try to get you to watch him or her for example does your child look at you for praise or say look or watch me कोई कंफ्यूजन अच्छे कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं नई स्किल सीख रहे हैं they want all the parents all the caregivers to keep clapping ठीक है या say some rewarding words तो वो praise या ये जो positive reinforcement है वो सीख कर रहा है यानी ठीक है तो यही सिखाते हैं ये लोग अपनी थेरेपीज में तो कुछ भी बच्चा कर रहा है आप क्लैप करिए हर बच्चा हर बूढ़ा वांट प्रेज ठीक है और जब प्रेज मिलती है तो वही बिहेवियर रीइंफोर्स होता है ठीक है जहाँ डांट पड़ती है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट 18 does your child understand when you tell him or her to do something for example if you don't point can your child understand put the book on the chair or bring me the blanket Cognition आते थे
कमांड फॉलो कर रहे हैं, नहीं follow कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज की भी अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है ना उसको। और ये भी जो है आपका जॉइंट अटेंशन में भी आता है, ये हायर लेवल में आता है, ठीक है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ आल्सो जॉइंट अटेंशन, कॉग्निशन। हाँ और इस पे पॉइंट नहीं करना। हाँ, बात पे, वर्बल पे करना, मतलब बिल्कुल आपको दिखानी ही नहीं है। हाँ, तो उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग नॉन है। वर्बल क्यूज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, नॉर्मल में नहीं, वर्बल पे, वर्बल पे। हाँ, वर्बल। हाँ, पॉइंट नहीं करना आपको। बिल्कुल पॉइंट नहीं कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन आपके रिसेप्टिव लैंग्वेज कितना वो रिसीव कर रहा है जो लैंग्वेज है, ठीक है उसको। आपके कमांड पे ही बस उसको करना है, विदाउट पॉइंटिंग। इसीलिए बहुत सारे बच्चे आते हैं ना जो डिलेड उनका लैंग्वेज है, बट दे आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड लैंग्वेज वेल, ठीक है। रिसेप्टिव लैंग्वेज उनकी सही है, जो भी मदर कह रही है सब लेके आ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं, यू आर नॉट दैट फॉर इट। मतलब इस बार दो बच्चा जो लैंग्वेज ना बोल रहा है ना समझ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसलिए लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, अब वो रिसीव कर पा रहा है उसको। 19. If something new happened, does your child look at your face to see how you feel about it? For example, if he or she hears a strange or funny noise or see a new toy, will he or she look at your face? ये क्या है? ये मुझे कोई बताएगा तो मैं मान जाऊंगी। नहीं, और बताओ, ये क्या है? फेस को क्यों देख रहा है? फेस को क्यों देख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी मुझे बताएगा मैं मान जाऊंगी। 90 नहीं, social referencing. Have you heard about social referencing? मुझे तो लग रहा है इसमें वो एक्सप्रेशन को नहीं, it's social referencing. हाँ, नहीं होगी तभी भी डाउटफुल अंडर द क्योंकि इसमें एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को भी इसको अंडरस्टैंड हाँ, तो it comes under social referencing. हाँ, 20 is, does your child like movement activity? For example, being swung or bounced on your knees. तो अब ये सारे हो गए, सबके टोटल हो गए, सबके 11 आ रहे हैं या किसी का गड़बड़ आ रहा है? तुम बताओ तुम्हारा क्या है? 11। सबने अच्छे से स्कोर कर लिया, स्कोरिंग समझ में आ गई? अगर किसी को भी डू यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग स्कोरिंग? आई कैन एक्सप्लेन अगेन। आपने 2, 5 और 12 आइटम के वर्ड स्कोरिंग बताया। हाँ तो इसमें यस है, हाँ, देखो एक तो अगर वो यस है तो कंफर्म है कि आप उसका डायग्नोस्टिक फौरन लगा दे, टेस्ट फॉलो अप कर दे। पहले तो ये है एक इंटरप्रिटेशन। अगर इन तीनों में बच्चे का यस है तो ठीक है, और अगर इन तीनों में से एक में यस है और सब में नो है, या 2 में यस है और सब में नो है, फिर आपके ये जो सारे स्कोरिंग है सबको ऐड करके फिर देखना है कि किसमें वो लाइक कर रहा है। ठीक है, अगर 3 में अगर डायरेक्ट वो ये इस 3 में अगर आप पहले आपको और कट शॉर्ट करना है, जैसे हम लोग यही कट शॉर्ट करते हैं, अगर 3 में वो आ रहा है यस, तो आपको इसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, फॉलो अप में जाए और डायग्नोस्टिक टूल लगा दें। ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट हाई रिस्क में आ जाते हैं बच्चे, इसीलिए ये स्क्रीनिंग टूल इसीलिए बेस्ट टूल माना जाता है। इसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 85% मानी जाती है, इसीलिए ये मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टूल फॉर ASD चाइल्ड है। ये सिर्फ ASD चाइल्ड पे यूज होगा? नहीं, डेवलपमेंटल डिले पे भी हो सकता। अगर जैसे कोई बच्चा बिहेवियरल डिसऑर्डर हाँ, यू कैन अप्लाई हम उससे डिटेक्ट कर हाँ, ये एक्चुअली जो मैम ने यही बताया था स्टार्टिंग में कि स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप जनरल पॉपुलेशन में से, ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जितने जनरल बच्चे आ रहे हैं उसमें से आप स्क्रीन आउट कर रहे हैं कि द चाइल्ड कुड हैव ASD और couldn't have ASD। ठीक है, तो हमें ये चीज स्क्रीन आउट करना होता है। स्क्रीन आउट डजंट मीन कि द चाइल्ड हैज ASD। ओके, फिर हम डायग्नोस्टिक टूल लगाते हैं, देन कंफर्म करते हैं कि बच्चा है या नहीं है। तो कुछ बच्चे आ जाते हैं डायग्नोस्टिक में, कुछ बच्चे नहीं आते हैं, बस यही होता है पर। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेरी? ओपन फॉर क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें जो तुमने बताया था कि लाइक मॉडरेट और ये टोटल स्कोरिंग वाला। यस, हाँ,
देखो इसमें क्या है कि अगर 0 to 1 ये पेरेंट्स फिल कर रहे हैं, आप ये अज्यूम कीजिए, या नॉर्मल लोग फिल कर रहे हैं, या हम बीइंग अ प्रोफेशनल फिल अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स ने अगर फिल किया, उनका लो रिस्क आया, तो उन्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है और 1 साल के बाद एक बार और रिपीट करा ले अगर चाहे तो, ठीक है। मॉडरेट रिस्क में अगर सेकेंड बर्थडे, हाँ 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 हाँ, क्या मतलब, अगर 2 years से कम है ना तो 2 years पे कम। हाँ कंप्लीट कर लेंगे। अगर 2 years से बड़ा है तो 3 months के बाद। अगर मॉडरेट में आया है तो आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना है। इसका फॉलो अप पर्सन होता है जिसमें इसी स्कोर्स में फेल एंड पास लिखा है। मान लीजिए पेरेंट्स इसमें यस लगा के आ रहे हैं, अब प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो है उसको देखेगा वाकई वो फेल है या पास है, इस आइटम में यही आएगा, वो ये है, ये फॉलो अप ये है मेरे पास। फॉलो अप ये है कि मान लीजिए यही आंसर है, अब इसको हमें देखना है कि पेरेंट्स ने यस और नो तो लगाया था, अब हमें देखना है कि ये इंटरप्रेट खुद करना है देख के, जो कि पेरेंट्स से कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। हम लोग समझ में इंटरव्यू प्रोफेशनल ही लगाएगा फॉलो अप। हाँ फॉलो अप प्रोफेशनल लगाएगा, ठीक है। एंड वो हाई रिस्क है तो यही क्वेश्चन आया है, बट डिटेल में हम ये चीज करा के देखेंगे, ठीक है, और हम उनसे और डीप डिटेल में क्वेरी करेंगे, ये है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मेरा ये है कि फॉलो करना कितना अर्ली होना है, फॉलो अप कितना अर्ली होना, मतलब कि ये जो फॉलो अप के लिए कब बताओगे? फौरन इंस्टेंट कर दें आप तो ज्यादा बेटर है। पेरेंट्स डिपेंड है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन कहते हैं विद इन 2 वीक के अंदर आ जाए, 2 वीक के अंदर, जो कॉमन सेइंग है। हाँ नहीं, मॉडरेट में तो फॉलो अप अप्लाई करना है, रिस्क में फॉलो अप को एलिमिनेट कर देना है, और समटाइम्स आपको लग रहा है तो डायरेक्ट आप डायग्नोस्टिक भी लगा दो, ठीक है। अगर ये पेरेंट्स ने अप्लाई किया है ना, तब तो आपको फॉलो अप पे जाना है, वरना हमारे पास आते हैं तो हम तो फॉलो अप ही लगाते हैं, ठीक है, हम तो डिटेल पूछ करके लगा रहे हैं। सिंगल टाइम हमें स्क्रीनिंग करना है या हम इसको रिपीट भी कर सकते रिपीट कर सकते हैं, अगर लो रिस्क है तो 1 साल बाद आप एक बार और रिपीट कर लीजिए अपने कंफर्मेशन के लिए कि कहीं वो रिस्क में आ तो नहीं रहा है। इट्स ए स्क्रीनिंग टूल एक्चुअली। हैं? जैसे पेरेंट्स ने हाँ 2 years ओल्डर, ठीक है। मतलब माइनस 17 महीने का बच्चा है, ठीक है, तो उसको 2 years और अगर 2 year हो ही चुका था उसको ऑलरेडी, तो ये मैम मेरा कहने का मतलब ये था कि पेरेंट्स ने इस पे किसी भी एक चीज पे यस हमें रिस्पॉन्स किया है, लेकिन जब हमने बच्चे के साथ स्क्रीन किया है बच्चा हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मैम, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अरे ये अब एक्सपर्ट, नहीं देखा है ना, जो भी कर रहा है तो उसको वो हमारे साथ मैं उसी चीज को कोशिश कर रही हूँ। जीते हैं ये भी करता है वो भी करता है, लेकिन जब तुमने देखा अपना फॉर्मूला करती है तो मैम बहुत से पेरेंट्स ये भी करते हैं कि अभी आपके सामने नहीं कर रहे हैं। इसमें वही है राइट है, कोई भी नया एनवायरनमेंट भी नहीं करेगा, उसमें तो सारा मैम मुझसे दोबारा रिपीट करेंगे। देखो इन सिंपल, पेरेंट्स ने आपको मोटा-मोटा आपको बता दिया। देखो ये अगर पेरेंट्स और अदर, देखो सिंपल ऐसे समझो, पेरेंट्स ने फिल किया है या अदर हेल्थ प्रोफेशनल ने फिल किया है, बट वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था, पीडियाट्रिशियन नहीं था, तो आपको जब मॉडरेट में आ रहा है तो आपको फिर साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल जो उसके एक्सपर्ट हैं लाइक पीडियाट्रिशियन, उनके पास जाना है, वो फिर मेन डायग्नोसिस बनाएंगे, चाहे वो फॉलो अप करें चाहे डायग्नोस्टिक करें, वो आपका काम नहीं है, वो प्रोफेशनल का काम है जो डिग्री है जिसके पास लाइसेंस है, दैट्स इट। Question number 12, does your child get upset by everyday noises? क्या क्वेश्चन नंबर 12, 12, हाँ इसमें क्या है, does your child get upset by everyday noises? हाँ 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 Like vacuum cleaner, loud music. Normal बच्चे करते हैं, they get upset. हाँ हाँ हाँ, They start नहीं एक्चुअली नहीं, एवरी टाइम अगर वो कर रहे हैं, जैसे एक है कि आपने जो मेरा असेसमेंट होता है उसमें बेसिकली क्या है कि आपने अभी मिक्सी चलाया तो अभी हम भी इरिटेट होंगे, बच्चा भी, नॉर्मल बच्चा भी इरिटेट होगा, ठीक है, लेकिन फॉर 5 और 10 सेकेंड वो हैबिचुअल हो जाएगा,
ठीक है, उसके बाद वो नहीं करेगा। बट जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो जब तक पैनिक रहेंगे टिल द वो बचता रहे, जैसे मिक्सी और ये होता है डायग्नोस्टिक बनाने का तरीका जो हम डिफाइन नहीं कर पाते। अब मेरी बच्ची है, वो जैसे ही मिक्सी चलता है वो ऐसे कर लेती है, इट डजंट मीन कि वो ASD चाइल्ड है। वो डब्ल्यू सिटिंग पे भी बैठती है, तो 2 सिम्टम तो उसके ऐसे ही मिल रहे हैं मैम। कभी कभी मैं वरी हो जाती हूँ, इतनी एक्टिव है ये 2 सिम्टम तो आ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बाद में थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। ये कंडीशन है कि डिपेंड ऑन द एक्टिविटी सेंसिटिविटी, इट्स मे बी हाइपो और हाइपर, ये डिपेंड करता है कि भाई आपके पास एक्टिविटी में कौन सी वाला है। समटाइम्स मिक्स्ड एंड गिवन मैनिफेस्टेड आल्सो विद द साउंड, इट डिपेंड ऑन द साउंड से एग्रीवेट हो रहा है। ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि एक्टिविटी में कौन सी सेंसिटिविटी है, हाइपर है, हाइपर, मिक्स्ड है, समटाइम्स ये मिक्स भी होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फर्दर सेंसरी इंटीग्रेशन रूल लगेगा, जैसे कि वो शॉर्ट सेंसरी प्रोफाइल हो गया, इट्स लाइक एक्चुअली ये हैबिचुएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि AC चल रहा है, अभी आप एकदम से यहाँ पे कोई नॉइस होगा हमें इरिटेट होने लगेगा, या किसी का जो मैसेजेस आ रहा है हमें इरिटेट हो रहे हैं। बट अगर वो कंटिन्यूअस AC चलने लग रहा है, हैबिचुएशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम थोड़ी देर के बाद हम हैबिचुएट हो जाते हैं, कि हमें पता चलता है कि बज रहा है लेकिन हम उसको मार्क नहीं करते हैं, लेकिन वो साउंड तो आ रही है ना कंटिन्यूअसली, AC की साउंड आ रही है, कूलर की साउंड आ रही है, बट हैबिचुएशन हो जाता है। बट इनमें हैबिचुएशन नहीं हो पाता है। और इवन यहाँ पर मतलब अगर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, सेवेंथ डे भी अगर चलेगा तो नॉर्मल किड नहीं, फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे नहीं, ये आप फिर कंफ्यूज होना है। अगर आज चला मेरे घर में तो बच्चा वो हुआ नॉर्मल बच्चा है, 2-3 बार के बाद वो एक्लेमेटाइज हो जाएगा। हाँ, नहीं, और दूसरी बात, हर बार इरिटेट होगा, और इसी पे इसके मैनेजमेंट होता है। हाँ, इसके बाद इसी पे मैनेजमेंट होता है, इंटरवेंशन होता है जो OT करता है। अगर हर बार हो रहा है तो OT आपको सेंसिटाइज करता है उसके अकॉर्डिंग, कि उसको पहले एनालाइज करता है कि उसको कितनी दिक्कत है। हाँ, स्क्रीनिंग में ये चीज देख रहे हैं, हर बार हो रहा है, then we will go for a diagnostic screening, diagnostic test. हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिखने, और थैंक यू मैम, आपने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी जो मेरे लिए इजी हो गई। थैंक यू।